In last lecture, we have to discuss about the vector differentiation calculus. Okay, vector differentiation calculus. Okay, today we will continue the next part of that topic. Okay, the new point is divergence of vector field. Divergence of vector field. Now see here definition of this, the divergence of vector field. The divergence of vector field when definition when a vector differentiable operator, when a vector differentiable operator del, when a vector differentiable operator del operates scalarly, on the vector point function, on the vector point function f bar, on the vector point function f bar, it gives the scalar quantity, del dot f bar, and this del dot f bar is called the divergence of a vector field, is called divergence of vector field. Divergence of vector field. Now see here the divergence of vector field definition: when a vector differentiable operator delta, when a vector differentiable operator delta, the value of delta आपको मालूम है, delta operates scalarly, this word is very very important, scalarly, operate scalarly on a vector field or vector point function f bar, it gives the scalar quantity. जो भी आपको मिलेगा वो क्या जाएगा, स्केलर क्वांटिटी del dot f bar, and this del dot f bar is called divergence of vector field. Divergence of vector field. देखो यहाँ पे क्या है, d डाइवर्जेंस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डेल डॉट, यहाँ पे क्या है, डॉट, डेल डॉट f bar, यहाँ पे क्या है, डाइवर्जेंस d, तो यहाँ पे क्या जाएगा, डॉट. ओके, एंड उसका रिजल्ट क्या है, डेल डॉट f bar, वी गेट स्केलर क्वांटिटी. आपका आंसर जो भी मिलेगा, दिस आंसर बिलोंग टू स्केलर, दिस आंसर बिलोंग्स टू फिक्स्ड नंबर, उसमें ij के नहीं आएंगे. ओके, तो देखो दिस डेल डॉट f bar इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड. ओके, नाउ सी हियर, सपोज f bar इज इक्वल टू f1i plus f2j plus f3k. Okay, f bar is f1i plus f2j plus f3k, and the value of del की वैल्यू क्या है, del is i dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. करेक्ट, ये हमने देखा है ऑलरेडी. करेक्ट, i j k. ओके, i is unit vector along x axis, j is unit vector along y axis, and k is unit vector along z axis. Then we have to find the value of del dot f. Okay, del dot f, और del dot f bar भी बोल दिया तो भी चलेगा, because f is vector. f क्या है यहाँ पे, vector. Okay, now del dot f bar is equal to the value of del I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z. This is value of del. Correct, this is value of del. Dot product with
डॉट प्रोडक्ट विथ एफ बार की वैल्यू क्या है F1i प्लस F2j प्लस F3k. Okay, this is value of F bar. Now dot product of this, we know that I dot I 1, J dot J 1 and K dot K 1, otherwise 0. That is I dot J 0, I dot K 0 and J dot K 0. तो यहाँ पे क्या मिलेगा? I dot I आंसर इज 1, J dot J आंसर इज 1, K dot K आंसर इज 1, अदरवाइज 0. तो क्या जाएगा? यहाँ पे क्या है? I का कोएफिशिएंट d by dx डॉट I. तो I डॉट I क्या मिलेगा? 1. तो यहाँ पे क्या है? I का डो बाय डो एक्स एंड यहाँ पे क्या है? I का F1. तो क्या जाएगा? डो बाय डो एक्स ऑफ F1 प्लस I डॉट J आंसर क्या जाएगा? 0. I डॉट K आंसर इज 0. देन सेम J डॉट I आंसर इज 0. J डॉट J आंसर क्या मिलेगा? 1. यहाँ पे क्या है? J का डो बाय डो y, यहाँ पे क्या है? J का F2 प्लस सेम फॉर लास्ट क्या जाएगा? K डॉट I 0, K डॉट J 0 एंड K डॉट K 1. तो यहाँ पे क्या है? K का डो बाय डो Z एंड यहाँ पे क्या है? K का F3. ओके, तो दिस इज योर डेल डॉट F बार, वैल्यू ऑफ डेल डॉट F बार, एंड दिस डेल डॉट F बार इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड. डेल डॉट F बार इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड. अभी उसमें IJK है क्या? नहीं है. दिस डज नॉट कंटेन IJK. उसका मीनिंग क्या है? दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी. दिस डेल डॉट F बार इज ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी. ओके, तो यहाँ पे हमने क्या बोला? वी गेट स्केलर क्वांटिटी. ओके, इन डॉट प्रोडक्ट वी गेट स्केलर क्वांटिटी. ओके, नाउ वन रिमार्क, एंड दिस रिमार्क इज इंपॉर्टेंट. रिमार्क क्या है? देखो, रिमार्क when del dot F bar, when del dot F bar equal to 0, when del dot F bar equal to 0, उसका मीनिंग क्या है? दिस डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड F bar इज इक्वल टू 0. डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड F bar इज इक्वल टू 0, देन और implies F bar is solenoidal. F bar is solenoidal vector field. At that time, this F bar is called solenoidal vector field. कब? When del dot F bar equal to 0, at that time F bar is called solenoidal vector field. Okay, this is all about divergence of vector field. Okay, क्या है? दिस डेल, यहाँ पे क्या है? डेल, यहाँ पे क्या है? F बार. ओके, देन डेल डॉट F बार. F बार की वैल्यू आपके पास है, डेल की वैल्यू आपके पास है. फाइंड डेल डॉट F बार, वी गेट दिस स्केलर क्वांटिटी एंड डेल डॉट F बार इक्वल टू 0. एट दैट टाइम F बार इज कॉल्ड सोलोनॉइडल वेक्टर फील्ड. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड. अब यहाँ पे क्या जाएगा? कर्ल. ओके, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड. अब देखो सेम है कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड. फेन वेक्टर डिफरेंशिएबल ऑपरेटर डेल ऑपरेट, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्केलर छोड़ के वेक्टरली. यहाँ पे क्या जाएगा? वेक्टरली. ऑन वेक्टर पॉइंट फंक्शन F बार, इट गिव्स वेक्टर क्वांटिटी. इट गिव्स वेक्टर क्वांटिटी. यहाँ पे क्या जाएगा? इट गिव्स वेक्टर क्वांटिटी. इट गिव्स वेक्टर क्वांटिटी दैट इज डेल क्रॉस F बार. यहाँ पे क्या मिलेगा? कर्ल में डेल क्रॉस F बार इज कॉल्ड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड F बार. इज कॉल्ड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड F बार. तो देखो डेफिनेशन,
कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड when a vector differentiable operator del operates vectorally on a vector point function f bar, it gives the vector quantity, यहाँ पे क्या जाएगी, the vector quantity, okay, vector quantity del cross f bar, the vector quantity del cross f bar is called curl of vector, is called curl of vector field, curl of vector field. This del cross f bar is called the curl of vector field. Okay, तो यहाँ पे क्या जाएगा, del cross, okay, and we get from this we get vector quantity. After simplification we get vector quantity. Okay, now suppose f bar is f1i plus f2j plus f3k and del is I dou by dou x plus j dou by dou y plus k dou by dou z, then we have to find del cross f bar. तो देखो del cross f bar क्या जाएगा, del cross f bar इज इक्वल टू इंडिटरमिनेंट, हमने देखा है क्रॉस प्रोडक्ट में, del cross f bar इज इक्वल टू फर्स्ट रो I, सेकंड रो j एंड थर्ड रो k, करेक्ट. देन उसमें सेकंड रो में क्या जाएगा, del, इन del द कोएफिशिएंट ऑफ I, इन del कोएफिशिएंट ऑफ I क्या है, डो बाय डो x, इन del कोएफिशिएंट ऑफ j डो बाय डो y, इन del कोएफिशिएंट ऑफ k डो बाय डो z. ओके, देन सेकंड में क्या है, f बार, इन f बार द कोएफिशिएंट ऑफ I इज f1, कोएफिशिएंट ऑफ j f2 and coefficient of k f3. This is your determinant. Solve the determinant. How to solve the determinant? I cap और I bar in bracket. देखो अभी I छोड़ दो, I का रो एंड कॉलम छोड़ दो, eliminate this column, also eliminate this row. तो यहाँ पे क्या मिलेगा, डो बाय डो y ऑफ f3, तो क्या जाएगा, डो बाय डो y ऑफ f3, ओके, माइनस डो बाय डो जेड ऑफ f2, डो बाय डो जेड किसका, f2 का, करेक्ट. डिटर्मिनेंट सबको मालूम है, डिटर्मिनेंट माइनस जे, अभी j का रो एंड कॉलम छोड़ दो, एलिमिनेट दिस कॉलम, एलिमिनेट दिस रो, क्या जाएगा, डो बाय डो x ऑफ f3, डो बाय डो x ऑफ f3 माइनस डो बाय डो जेड ऑफ f1, डो बाय डो जेड ऑफ f1, तो क्या जाएगा, डो बाय डो जेड ऑफ f1, ओके, प्लस अभी लास्ट में क्या है, k का रो एंड कॉलम छोड़ दो, दिस को ओके, दिस कॉलम डिलीट, दिस रो डिलीट, तो क्या मिलेगा, डो बाय डो x ऑफ f2, डो बाय डो x ऑफ f2 माइनस डो बाय डो y ऑफ f1, डो बाय डो y ऑफ f1, ओके. तो दिस इज योर डिटर्मिनेंट, दिस इज वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस f बार, ओके, एंड दिस डेल क्रॉस f बार इज कॉल्ड कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड f बार, ओके. नाउ वन रिमार्क, when del cross f bar is equal to 0, del cross f bar equal to 0 implies f bar is irrotational vector field. F bar is irrotational वेक्टर फील्ड, तो f बार क्या मिलेगा हमें, इरोटेशनल, ओके. तो देखो व्हेन डेल क्रॉस f बार इज इक्वल टू 0, उसका मीनिंग क्या है, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, दिस डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 इंप्लाइज f बार इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड. यहाँ पे हमें एग्जांपल सॉल्व करना है बाद में. दिस f बार इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड कब, व्हेन डेल क्रॉस f बार इक्वल टू 0, ओके. डेल क्रॉस f बार इक्वल टू 0 एट दैट टाइम f बार इज कॉल्ड इरोटेशनल वेक्टर फील्ड. तो दिस इज ऑल अबाउट कर्ल ऑफ वेक्टर फील्ड, ओके. तो फॉर कर्ल क्या जाएगा, डेल क्रॉस f बार, डेल क्रॉस f बार. नाउ
we will start examples on that topic. Okay, examples on that topic. Example first. Examples. Find divergence and curl of radius vector. Radius vector or position vector, both are same. Okay, we have to find the divergence and curl of radius vector. Divergence and curl of किसका? radius vector का. radius vector का. Okay, तो देखो in answer we know that क्या है वैल्यू ऑफ रेडियस वेक्टर? दिस इज योर आर बार. करेक्ट. तो क्या जाएगा? आर बार इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. करेक्ट. दिस इज योर आर बार. नाउ वी हैव टू फाइंड डेल डॉट आर बार. डेल डॉट आर बार, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ रेडियस वेक्टर. ओके, तो क्या जाएगा डेल डॉट आर बार? द वैल्यू ऑफ डेल आई डो बाई डो एक्स प्लस जे डो बाई डो वाई प्लस के डो बाई डो जेड. दिस इज वैल्यू ऑफ डेल. करेक्ट. अभी हमने देखा है डॉट आर बार. द वैल्यू ऑफ आर बार एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के. ओके, नाउ सॉल्व दिस डॉट प्रोडक्ट. तो क्या जाएगा डॉट प्रोडक्ट? आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1 एंड के डॉट के 1, अदरवाइज 0. तो देखो यहाँ पे आई का कोएफिशिएंट क्या है? डी बाई डी एक्स डो बाई डो एक्स ऑफ, यहाँ पे क्या है? एक्स. यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट डो बाई डो वाई, यहाँ पे जे का कोएफिशिएंट वाई, यहाँ पे के का डो बाई डो जेड एंड यहाँ पे के का जेड. नाउ सॉल्व दिस. वी गेट डो बाई डो एक्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. आंसर क्या जाएगा? 1. y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y 1. z का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू z क्या जाएगा? 1. तो वी गेट डेल डॉट आर बार क्या जाएगा? आंसर 1 + 1 + 1, दिस इज 3. एंड दिस रिमार्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इन नेक्स्ट टॉपिक विल यूज दिस रिमार्क. द वैल्यू ऑफ डेल डॉट आर बार. डेल डॉट आर बार क्या मिलता है? 3. और दिस डेल डॉट आर बार इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ रेडियस वेक्टर. डाइवर्जेंस ऑफ रेडियस वेक्टर. यहाँ पे वेक्टर कौन सा है? रेडियस. ओके, एंड डेल डॉट आर बार इज कॉल्ड डाइवर्जेंस ऑफ रेडियस वेक्टर एंड डाइवर्जेंस ऑफ रेडियस वेक्टर इज 3 और डेल डॉट आर बार इज इक्वल टू 3. ओके, नाउ सेम वी हैव टू फाइंड डेल क्रॉस आर बार. नाउ डेल क्रॉस आर बार, तो क्या जाएगा इन क्रॉस प्रोडक्ट? अभी हमने देखा है डेल क्रॉस आर बार. फर्स्ट रो आई जे के, आई जे एंड के. सेकंड रो डेल का आई का कोएफिशिएंट. डेल का आई का कोएफिशिएंट क्या है? डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई डो बाई डो जेड. तो यहाँ पे क्या जाएगा? डो बाई डो एक्स डो बाई डो वाई एंड डो बाई डो जेड. ओके, देन इन आर बार आई का कोएफिशिएंट क्या है? इन आर बार आई का कोएफिशिएंट एक्स वाई जेड. तो क्या जाएगा? एक्स वाई एंड जेड. नाउ सॉल्व दिस. तो क्या मिलेगा? आई इन ब्रैकेट, देखो बाई का कॉलम एंड रो छोड़ दो, एलिमिनेट दिस. डो बाई डो वाई ऑफ जेड. तो यहाँ पे क्या जाएगा? डो बाई डो वाई ऑफ जेड. डो बाई डो वाई ऑफ जेड माइनस डो बाई डो जेड ऑफ वाई. डो बाई डो जेड ऑफ वाई माइनस जे. अभी जे का छोड़ दो कॉलम एंड रो. तो क्या जाएगा? डो बाई डो एक्स ऑफ जेड. डो बाई डो एक्स ऑफ जेड माइनस डो बाई डो जेड ऑफ एक्स. ओके, प्लस के इन ब्रैकेट, के का छोड़ दो रो एंड कॉलम. डो बाई डो एक्स ऑफ वाई
माइनस डो बाय डो आई ऑफ एक्स, डो बाय डो आई ऑफ एक्स। तो क्या जाएगा आंसर देखो, आई इन ब्रैकेट, यहाँ पे क्या जाएगा, z का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y आंसर 0, y का पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू z आंसर 0, प्लस माइनस j, यहां पे क्या जाएगा 0, तो यहां पे क्या जाएगा 0, तो आंसर क्या मिलेगा हमें 0, तो क्या मिलेगा डेल क्रॉस आर बार इज इक्वल टू 0 एंड दिस आइडेंटिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Del cross r bar is equal to 0. Okay. Now, in previous section, we have to discuss del cross f bar is equal to 0. Then f bar is called irrotational vector field. तो यहाँ पे क्या है, del cross r bar equal to 0. At that time, this r bar is called irrotational vector field. Okay. तो this r bar or this r bar is called रेडियस वेक्टर, रेडियस वेक्टर, तो रेडियस वेक्टर इज ऑलवेज इरोटेशनल, रेडियस वेक्टर फील्ड इज ऑलवेज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। ओके, तो आपको आपके पास दिस टू वैल्यूज आर इंपॉर्टेंट, डेल डॉट आर बार इज इक्वल टू 3 एंड डेल क्रॉस आर बार इज इक्वल टू 0। फ्रॉम दिस वी विल से दैट दिस आर बार इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड। ओके, दिस इज योर एग्जांपल नंबर फर्स्ट। नाउ सेकंड एग्जांपल, example second, and this example is very very important. Example second, show that f bar is equal to, example second, show that f bar is equal to, in bracket 6xy plus z cube into I plus 3x square minus zj, 3x square minus z into j plus 3x z square minus y, 3x z square minus y into k is irrotational, is irrotational, is irrotational, full stop, find scalar potential, find scalar potential phi such that f bar is equal to del phi, f bar is equal to del phi. Now look on the board, क्वेश्चन क्या है देखो, show that f bar is equal to this, f bar is equal to this and f bar is irrotational, f bar is irrotational. उसका मीनिंग क्या है, the definition of irrotational, when del cross f bar is equal to 0, del cross f bar is equal to 0, at that time we will call this f bar as irrotational. ओके, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट क्या, हियर फर्स्ट टारगेट इज शो दैट डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू 0, एट दैट टाइम वी गेट irrotational, करेक्ट. ऑल्सो फाइंड द स्केलर पोटेंशियल फाई सच दैट एफ बार इज इक्वल टू डेल फाई. आफ्टर दैट वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ स्केलर पोटेंशियल फाई. ओके, तो फर्स्ट टारगेट क्या है, फर्स्ट टारगेट शो दैट गिवन वेक्टर फील्ड इज irrotational एंड सेकंड टारगेट क्या है, we have to find the value of scalar potential phi. Okay, now in answer here f bar is, in answer here f bar is equal to 6xy plus z cube I plus 3x square minus z into j plus 3x z square minus y into k. Okay, this is your f bar. Now we will find del cross f bar, del cross f bar. तो क्या जाएगा, now
डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू, उसकी डेफिनेशन अभी हमने देखी है। नाउ डेल क्रॉस एफ बार, फर्स्ट रो क्या आता है आई, सेकंड जे एंड थर्ड के, करेक्ट, आई जे के। नाउ डेल का कोएफिशिएंट, डेल में क्या जाएगा, डो बाय डो एक्स, डो बाय डो वाई एंड डो बाय डो जेड, करेक्ट। एंड लास्ट F1 F2 F3, दिस इज F1 F2 F3, करेक्ट। तो क्या जाएगा F1 6x प्लस जेड क्यूब, देन F2 इज दिस 3x स्क्वायर माइनस जेड, देन F3 क्या है 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई, करेक्ट। दिस इज योर F1 F2 एंड F3, करेक्ट। नाउ विल सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। वे आपका टारगेट क्या है, सॉल्व दिस डिटर्मिनेंट। तो क्या जाएगा डिटर्मिनेंट, दिस आई एज इट इज इन ब्रैकेट, आई का रो एंड कॉलम छोड़ दो, दिस रो डिलीट, दिस कॉलम डिलीट। तो क्या बाकी है, डो बाय डो वाई ऑफ दिस, तो क्या जाएगा डो बाय डो वाई ऑफ 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस डो बाय डो जेड ऑफ 3x स्क्वायर माइनस जेड। ये ठीक ठाक लिखो, हाँ, फर्स्ट राइट दिस डो बाय डो जेड देन दिस, नहीं तो फर्स्ट दिस देन सेकंड दिस, वहां पे कोई मीनिंग नहीं, ओके। माइनस जे, देन जे का रो एंड कॉलम छोड़ दो, जे का, तो क्या बचेगा डो बाय डो एक्स ऑफ दैट, डो बाय डो एक्स ऑफ 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई माइनस, और आई विल राइट हियर, देखो फॉर जे डो बाय डो एक्स ऑफ दिस लिख दिया, माइनस डो बाय डो जेड किसका 6xy प्लस जेड क्यूब, करेक्ट। देन प्लस के का रो एंड कॉलम छोड़ दो, ये गया, डो बाय डो एक्स ऑफ दिस 3x स्क्वायर जे माइनस जेड माइनस डो बाय डो वाई ऑफ दिस, करेक्ट, 6xy प्लस जेड क्यूब, ओके। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट यही स्टेप है, क्या करना है खाली डिटर्मिनेंट, ओके। नाउ सॉल्व दिस, आई इन ब्रैकेट डो बाय डो वाई, उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, क्या मिलेगा उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, यहाँ पे क्या है 3x जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक्स जेड 3 आर कॉन्स्टेंट, तो क्या जाएगा 0, यहाँ पे क्या जाएगा 0, एंड उसका डिफरेंशिएशन क्या जाएगा माइनस, हाँ वाई का माइनस वाई का विद रिस्पेक्ट टू वाई -1, ओके, माइनस। अभी यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पे क्या जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, एक्स का क्या जाएगा 0, तो यहाँ पे क्या बचेगा -1, तो यहाँ पे क्या जाएगा -1, ओके, माइनस जे इन ब्रैकेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देखो यहाँ पे क्या जाएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या जाएगा 1, तो 1 इंटू 3 इंटू जेड स्क्वायर, तो क्या बचेगा 3 जेड स्क्वायर, एंड वाई का क्या जाएगा 0, करेक्ट। यहाँ पे साइन क्या है माइनस, यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू जेड क्या जाएगा विद रिस्पेक्ट टू जेड, यहाँ पे वो क्या जाएगा 6xy 0, बिकॉज एक्स एंड वाई आर कॉन्स्टेंट विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो उसका क्या जाएगा जेड क्यूब का 3z स्क्वायर प्लस के इन ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का 2x, 2 इंटू 3 6x, यहाँ पे z का 0 माइनस विद रिस्पेक्ट टू वाई क्या जाएगा 6x, करेक्ट। और सॉल्व दिस इज माइनस ऑफ -1, तो क्या जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या बचेगा 0, दिस इज I0 माइनस j, यहाँ पे क्या जाएगा 0 प्लस के, यहाँ पे क्या जाएगा 0, तो वी गेट दिस इज 0, फ्रॉम दिस डेल क्रॉस एफ बार इक्वल टू 0, डेल क्रॉस एफ बार इज इक्वल टू 0, तो उसका मीनिंग क्या है, गिवन फील्ड एफ बार इज इरोटेशनल, दिस इंप्लाइज गिवन फील्ड एफ बार इज इरोटेशनल, तो क्या जाएगा हिंस एफ बार इज इरोटेशनल, एफ बार इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड,
एफ बार इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड. दिस इज योर हाफ पार्ट. क्वेश्चन क्या है? शो दैट एफ बार इज इक्वल टू दिस इज इरोटेशनल वेक्टर फील्ड. तो फर्स्ट टारगेट क्या जाएगा? फर्स्ट फाइंड डेल क्रॉस एफ बार. डेल क्रॉस एफ बार वी गेट वैल्यू ऑफ डेल क्रॉस एफ बार इज ijk first row, second row for del and third row for f1, f2, f3. Solve this by using proper method. We definitely get del cross f bar is equal to 0, and from that we will conclude that f bar is irrotational vector field. This is your half part. Now next part. Now we know one vector identity, that is d phi is equal to del phi dot dr bar. This is one vector identity है. d phi is equal to del phi dot dr bar. But we have to find value of phi, and here given that del phi is f bar. del phi क्या है? f bar. तो यहाँ पे क्या जाएगा? value of del phi, this is f bar dot dr bar. Okay, f bar dot dr bar. Now here we have to find value of phi. यहाँ पे क्या है? d phi. Integrate this we get phi is equal to integration क्या बचेगा? f bar dot dr bar plus constant. Okay. Now solve this. Put value of f bar, also put value of dr bar. तो क्या जाएगा वो? This is value of f bar is, f bar यहाँ पे दिया है, f bar is in bracket 6xy plus z cube into I plus value of this f2 3x square minus z into j plus value of f3 3x z square minus y into k. Okay, this is value. Okay, this is your phi is equal to integration f bar dot dr bar plus c. Then write value of f bar. यहाँ पे क्या लिखा है? value of f bar dot we have to write value of dr bar. Okay, तो dr bar, r bar की वैल्यू क्या है? r bar is xi plus yj plus zk. करेक्ट. दिस इज वैल्यू ऑफ r bar. तो dr bar क्या जाएगा? dr bar is equal to I dx plus j dy plus k dz. Okay, k dz. This is value of dr bar. Okay. Now in dot product put value of dr bar. dr bar is I dx plus j dy plus k dz. Okay, this is value of dr bar plus c. Then same I का कोएफिशिएंट आंसर 1, j का कोएफिशिएंट आंसर 1, k का कोएफिशिएंट आंसर 1. Now right here this is 6xy plus z cube. I का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, तो यहाँ पे क्या है? into dx plus I will separate this integral. j का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है? dy. यहाँ पे क्या है? this bracket. यहाँ पे क्या है? 3x square minus z into dy plus I will separate integration here also for dz. यहाँ पे k का कोएफिशिएंट क्या है? दिस ब्रैकेट. यहाँ पे k का कोएफिशिएंट क्या है? dz. तो क्या जाएगा? इंटीग्रेशन 3x z स्क्वायर माइनस y इंटू dz. ओके, प्लस c. ओके, नाउ solve this integration by using one shortcut method. With respect to dx, y and z are constant. With respect to dx y comma z क्या जाएगा? constant. yz constant. Okay, with respect to dy ignore x or neglect x or delete term of x. Delete x and z constant. And with respect to z delete x and y. Delete x comma y. ओके, दिस इज बिकॉज फॉर इरोटेशनल वेक्टर फील्ड. ओके, यहाँ पे ऐसा नहीं किया, यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, हियर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, हियर विथ रिस्पेक्ट टू जेड, ऐसे भी आंसर किया तो आपको सेम ही आंसर आएगा, सिर्फ कांस्टेंट मल्टीपल में आएगा. ओके, तो देखो यहाँ पे
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स उसका डेरिवेटिव क्या जाएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स का डिफरेंशिएट, हाँ एक्स का इंटीग्रेशन क्या जाएगा, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2, यहाँ पे क्या है 6 बाई 2, तो क्या जाएगा 3x स्क्वायर वाई प्लस जेड क्यूब डी एक्स, जेड क्यूब डी एक्स, डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या आता है एक्स, तो क्या मिलेगा जेड क्यूब एक्स प्लस हियर डिलीट द टर्म ऑफ एक्स, यहाँ पे फर्स्ट टर्म किसकी है एक्स की, वो आपको डिलीट करना है, तो साइन क्या बचेगा यहाँ पे माइनस जेड इंटू डी वाई, जेड इंटू डी वाई, डी वाई का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई दिस इज वाई, तो क्या जाएगा जेड वाई, ओके प्लस हियर डिलीट एक्स एंड वाई, यहाँ पे एक्स है डिलीट कर दो टर्म, यहाँ पे वाई है डिलीट कर दो टर्म, प्लस क्या बचेगा सी, तो दिस इज योर फाइव सी, दिस इज योर फाइव। ओके क्या क्या है, तो देखो दिस इज एफ बार, दिस इज डी आर बार, दोनों का डॉट प्रोडक्ट इंटीग्रेशन सेपरेट किया विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू डी वाई, विथ रिस्पेक्ट टू डी जेड, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट, with respect to dy delete x or delete the term containing x, delete the term containing x, okay and z constant, यहाँ पे delete the term containing x and y, delete the term containing x and y, उसका मीनिंग क्या है delete the term containing x and y, okay यहाँ पे delete the term containing x and integrate with respect to dx first term, integrate with respect to dy and here integrate with respect to dz, we get the scalar potential phi, okay so this is your example on that topic. Example क्या है, show that the given vector field is irrotational, also find scalar potential phi such that f bar is equal to del phi. First show that given vector field is irrotational, after that we have to find value of phi, okay.